I think we have enough participants joined. Let's formally begin. Welcome everyone to the third edition of Pakistan Tableau User Group. This event is all about data modeling using Tableau. My name is Waqar Ahmed Sheikh. I am working as senior BI engineer at ADO. Apart from that, I also act as a Tableau ambassador. Uh, Recently, we started Tableau User Group Pakistan Tableau User Group, and today's third edition of the Pakistan Tableau User Group. Today we have with us Mohammad Taha. He's working with me at ADO as a BI engineer. He's a very talented guy, expert in data modeling, advanced calculation. Uh, so I requested him to have a session with us uh, for our audience and share his knowledge about data modeling in Tableau. So I'll not take much time. I request Taha to please continue, take forward. He will give his introduction. Taha, can you please share your screen and can take forward from this? Assalamualaikum. Walaikum salam. Hello, Assalamualaikum everyone. This is Mohammad Taha. I am a BI engineer. I have been working at Edo AI as a BI engineer for last 2 years, and I worked on several projects. And my industry experiences, pharmaceutical industry and banking industry as well. So, give me just 1 minute. Let me share my screen. Is my screen is visible? Yeah, we can see the screen. Taha, please continue. Okay, all right. So basically, let's get started this meetup. So this is the agenda of today's meetup. First of all, we will cover the introduction of data model. What is data model and its importance, and over the time I will cover all the contents. So let's come to the first slide. First of all, we need to understand what is data model in Tableau. I will talk about all the topics that related with in Tableau. Okay. So basically, data model is the structure and organize of the tables that we define in modeling, and so we can analyze efficiently the visualizations. For example, if we create the uh, efficient data model, so we can analyze the visualization efficiently and make the complex calculation as well. It also helps us to uh, create the calculation, make the calculations accurate and aggregation that using in dashboards. Or it allows us to organize the data and query performance. For example, if we create a dashboard, so the dashboard performance will be optimized if we data model made simple and accurate and uh, following the followed by the best practices. Basically, in Tableau, we can connect multiple data sources in data modeling and drag the different tables and make the model at the logical layer. I will cover all the aspects as per the Tableau. So these are the importance. Why data model is important in Tableau? It ensures the accurate analysis. If we create the analysis in Tableau, basically data model allow us to make the accurate analysis.
and it also allow us to improve dashboard performance and data redundancy. So data redundancy means duplications of rows in Tableau. So we can also reduce or remove the duplications of rows in tables in Tableau. It also support us to complex analysis. For example, if we need to create the complex calculation, if the data models are created, if if our data model creates simple and accurate, so we can also make the complex calculations in the front end and avoid the hurdles. So let me talk about the history of Tableau. So first of all, in Tableau, we have in initial time we have just joins in Tableau. For example, traditional joins similar to SQL joins, uh, like left join, right join, inner join, outer join. And so basically, after that, Tableau introduced Tableau introduced the new component which is called as data blending. Okay. After that, after data blending, Tableau introduced the relationship. So we will cover all these topics in this meetup uh, further. So let me come to the Tableau screen. Basically, this is the interface of our Tableau. Basically, these are the connectors which we can connect our Tableau from the multiple sources like Microsoft Excel, text file, JSON, and also the databases, other database Vertica. So uh, we connect the Excel file firstly. So basically, let me explain this interface, which is called is logical layer. Basically, in Tableau, there is a concept of logical layer and physical layer. All right. Basically, these are the difference between logical layer and physical layer. In logical layer, we define the relationship between the tables, but in physical layer, we define the joins between the tables. So let me explain the difference between them. Uh, Basically, this is the interface of logical layer, and this table is called as logical table. All right. Uh, this interface is logical layer, and this table is logical table. When we double click on this table, we come up to physical layer. This interface is physical layer. So let me explain how we work, what we can do in physical layer and what we can do in logical layer. So basically, this is my table A, order table. So I will join another table. So basically, uh, this is my return table. When I hover on this table, so it will show the return table name, return table. Basically, these are the joins types. How we join the tables in Tableau. So uh, just understand how we does how how we does in physical layer and how we does in logical layer. So basically, this is the inner join and this is the key which I'm using. Customer ID is my key and this also a key. So when I check the relationship between when I check this join is accurate or not, so we will come to the front end and just drag the customer ID here. So basically, my join works perfectly. If my join is not accurate, so this view will be erased. It will not be visible if join is not correct.
so this is the behavior of physical layer. So let me discuss the logical layer. Basically, this is my table. बेसिकली ये हमारा लॉजिकल लेयर है। इस पे हमने अ, इसको एसोसिएशन बना ली, सही है, रिलेशनशिप बना लिया। तो बेसिकली फिजिकल लेयर का हमने बिहेवियर देख लिया था, हमने जॉइंट्स वगैरह सारे देख लिए हैं चीज़ें, और ये हमारी लॉजिकल लेयर है। अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है, अगर मैं यहाँ पे आप आऊँगा, जब हम फिजिकल लेयर पे जॉइन लगाते हैं तो वो टेबल हमारा बेसिकली उसका पार्ट बन जाता है, फिजिकली फ्लैट टेबल बन जाता है। लेकिन जब हम लॉजिकल लेयर पे जाते हैं तो वो टेबल्स को सेपरेट रखता है, और वो जो जॉइंट्स हम लगाते हैं वो रन टाइम पे काम करता है। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर आईडी पे मैंने यहाँ पे इसकी एसोसिएशन बनाई हुई है। सो कस्टमर आईडी और दूसरे टेबल से जो कस्टमर आईडी आ रही है, जब मैं व्यू में ये वाली कस्टमर आईडी लाऊंगा ना, तब जाके मेरा एसोसिएशन वाला ये वाला रिलेशनशिप काम करेगा रन टाइम पे। लेकिन फिजिकल लेयर पे वो इमिडिएटली वर्क करता है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है इसके अंदर इन दो लेयर्स में। और जैसे कहा भी है, टेबल रिमेन सेपरेट एंड टेबल्स आर मर्ज इनटू वन टेबल। बस इसका एक डिसएडवांटेज होता है फिजिकल लेयर पे। जब हम जॉइन लगाते हैं तो यहाँ पे ये डुप्लीकेशन भी कर देता है, लेकिन लॉजिकल लेयर पे ये यूनिक रखता है रिकॉर्ड्स को। ये एक डिफरेंस है इसका। और हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखें, बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर है इसका, इन दो लेयर्स का, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो फिजिकल लेयर के अंदर हमारे पास बेसिकली आप समझ लें, लॉजिकल लेयर इज अ कंटेनर ऑफ फिजिकल लेयर। तो बेसिकली फिजिकल टेबल्स का कंटेनर होता है लॉजिकल टेबल। सही है, लॉजिकल टेबल फॉर एग्जांपल लॉजिकल टेबल ए है हमारा, इसके अंदर हमारे पास 4 टेबल होंगे फिजिकल, जिससे जॉइन लग के ये हमारा एक टेबल बन रहा है। इसी तरीके से हमारे पास फिजिकल टेबल एक ये है और लॉजिकल टेबल ये है। इस तरीके ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अ, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स एंड जॉइंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जॉइंट्स जो है वो एक उस टेबल को फिजिकल पार्ट बना देता है, दूसरा टेबल को दूसरे टेबल का भी। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन वो व्यू के अंदर जब हम कोई विजुअलाइजेशन बना रहे होते हैं तो वो रन टाइम पे वो जॉइन जो है वर्क करता है। तो ये एट द क्यूरी टाइम, एट द रन टाइम पे। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, और उसमें डुप्लीकेशन रिमूव हो जाती हैं लॉजिकल रिलेशनशिप पे, लॉजिकल लेयर पे जॉइंट्स के अंदर डुप्लीकेट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। अच्छा, अच्छा, एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है यूनियन का। तो अभी हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, यूनियन के कॉन्सेप्ट को। हम्म, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें यूनियन में किसको कर रहा हूँ। मेरे पास एक टेबल है ये यूनियन एग्जाम्पल 1 के नाम से, जिसके अंदर
5 रॉस हैं, तो ये 5 रॉस हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एयर है 24, और यही सेम टेबल मैं टैबलो पे लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर भी सेम आ गई मेरे पास 5 रॉस, और एयर 2024 आ गया इसमें, सही है। अब मुझे यूनियन करना है, सही है। यूनियन मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक और टेबल यहाँ पे है जिसके अंदर जिसके अंदर सेम रॉस हैं 5, लेकिन एयर 25 है, सही है। तो मैं यूनियन करूँगा तो ये 10 रॉस हो जानी चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से देखो, इसका एक तरीका ये होता है कि यहाँ से कन्वर्ट टू यूनियन हम करेंगे, तो ये हमसे पूछेगा कि कौन सी शीट को करना है। तो मैंने इसको मैनुअली नहीं बताया, मैंने इसको बोला यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे आके मैंने इसको बता दिया कि मेरी फाइल का नाम होगा ये यूनियन एग्जाम्पल। अच्छा, हमारी एक्सेल फाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये। मैंने इसको बता दिया इसका नाम यूनियन एग्जाम्पल हो और आगे कुछ भी हो, मैंने स्टेरिक लगा दिया, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया इसको। तो ये देखें, ये अब हमारी 10 रॉस हो गई हैं, और हम एयर देखेंगे तो 2024 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है। बेसिकली ये दो जो फाइल्स हैं हमारी, ये यूनियन हो गई हैं हमारी, सही है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। अब इसको इसी तरीके से हम मैनुअली भी हम कर सकते थे, एडिट यूनियन करके मैं इसको स्पेसिफिक यहाँ से इसको मैं ये बता सकता था, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये दूसरी शीट है, इसने ऑटोमेटिक वो कर ली इसको, ओके करा। आई थिंक दोनों शीट्स का नाम सेम है, तो वो एक को रीड कर रहा है, इसका नाम स्विच करना पड़ेगा। सर ये कॉन्सेप्ट है यूनियन का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, एक यूजुअली एक एग्जाम मसला आता है हमें डेटा मॉडलिंग के टाइम, प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन हो जाती है रॉस में। भी एक एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने जैसे बात करी थी स्टार्ट में कि फिजिकल लेयर पे जब हम जॉइन लगाते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाती है, लेकिन लॉजिकल लेयर पे डुप्लीकेशन नहीं होती। और डुप्लीकेशन होने की वजह होती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, सही है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है अपने पास। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर टेबल है मेरे पास, सही है। और मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैं एक्सेल फाइल भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता हो कि हमारे टेबल में डाटा क्या है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए वहाँ से। तो अब ये मेरे पास दो टेबल हैं, ऑर्डर टेबल और रिटर्न का टेबल, सही है। इसके अंदर दोनों में एक की है, कस्टमर आईडी की बेस पे ये जुड़ेगा, और दोनों में दो दो रॉस हैं मेरे पास, सही है। तो बेसिकली ये मेरे पास ऑर्डर टेबल में ऑलरेडी लेकर आ चुका था यहाँ पे। अब मैं पहले ज्वाइन लगा के देखता हूँ। मेरा रिटर्न का टेबल है ये रहा। अब ये देखें, ये इनर ज्वाइन लग गया और ये कस्टमर आईडी पे लग गया, इसने रॉस को 4 कर दिया।
विच इज नॉट। ये एक डुप्लीकेशन का एक छोटी सी एग्जांपल थी। ये मसला होता है जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डुप्लीकेशन होती है, तो फिर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है जब हम ज्वाइन करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डायमेंशन टेबल्स होते हैं जिसको हम जोड़ते हैं। फैक्ट टेबल एक होता है, डायमेंशन टेबल होते हैं, उससे हम लिंक करते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेशन। अभी मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है, लेफ्ट साइड पे भी डुप्लीकेशन है, राइट साइड पे भी डुप्लीकेशन है, इसने रॉस 4 कर दी, विच इज रॉन्ग। ये एक एग्जांपल है उसकी डुप्लीकेशन की, छोटी सी। ये मैंने इस पे मुझे लगता था इम्पोर्टेंट है तो मैंने ऐड करी थी। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर डेटा ब्लेंडिंग का। बेसिकली डेटा ब्लेंडिंग का एक इसके अंदर फंक्शनैलिटी के टैबलो के अंदर हम कंबाइन कर सकते हैं डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सोर्स है ए और एक डेटा सोर्स है बी। तो हम क्या करेंगे, हम जब दो डेटा सोर्स अलग अलग लाते हैं, वो एक अलग अलग टैब में आती है, वो एज अ लॉजिकल टेबल नहीं आती। तो हमें अगर उन दोनों के बीच में कोई विजुअलाइजेशन बनानी है, तो हम उसको किसी की बेस पे ज्वाइन बेसिकली रिलेशनशिप बनाते हैं उसका, और देन वो विजुअलाइजेशन हम बना लेते हैं। और डेटा ब्लेंडिंग वर्क करती है शीट बाय शीट बेसिस पे। मतलब कि अगर मैं डेटा ब्लेंडिंग अपनी एक शीट पे करता हूँ, तो मैं जब दूसरी शीट पे मूव होऊंगा, तो मुझे दोबारा से ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी उस शीट की स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन के लिए। सही है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। डेटा ब्लेंडिंग एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास टेबल है ऑर्डर्स का। ये मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। सही है। हाँ, ये मेरा एक टेबल है। अब मुझे क्या करना है, डेटा ब्लेंडिंग करनी है। तो डेटा ब्लेंडिंग, मेरे पास एक और टेबल है बजट का। यहाँ पे जैसे तो मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये मेरे पास बजट का टेबल है जिसके अंदर डाटा ये रखा हुआ है, रीजन, सेगमेंट और बजट क्वांटिटी। क्या करूँगा इसमें मैं, यहाँ पे जाके न्यू डेटा सोर्स है, यहाँ पे ऐड करूँगा। एक्सेल फाइल है, और वो जो मेरी बजट वाली फाइल है, वो मेरी है यहाँ पे, ये मैं लेकर आ गया। अब इसने एक नया इंस्टेंस खोल दिया टैबलो का, लेकिन जब मैं यहाँ पे देखूंगा, तो मेरे पास ये दो आ रही हैं डेटा सोर्सेस। अब इसमें से मेरी एक प्राइमरी डेटा सोर्स होगी और एक सेकेंडरी डेटा सोर्स होगी। सही है। तो बेसिकली पहली वाली जो थी मेरी वो प्राइमरी है, दूसरी वाली जो मैंने अभी ऐड करी है वो सेकेंडरी है। मैं यहाँ शीट 1 पे आऊँगा, तो यहाँ पे आके मुझे ये देखें दो अलग अलग बेसिकली डेटा सोर्सेज दिख रही है। ये अलग अलग दिख रही है। अब मुझे इनका रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि मुझे रीजन लेकर आना है ऑर्डर से, सेगमेंट लेना लेकर आना है ऑर्डर से, और मुझे मेजर देखना है दूसरी वाली डेटा सोर्स से। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा में आऊँगा, एडिट ब्लेंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आने के बाद अब देखें इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि ये कॉमन कीज है हमारे पास दोनों डेटा सोर्सेस में। सही है। तो यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पे एडिट नहीं होगा, ये कस्टम पे एडिट होगा। यहाँ से, यहाँ से हम इसको कोई भी वो बता देंगे कि, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कर देगा। हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे जाने के बाद
कोई और तीसरी की है तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं बेसिकली रीजन लेकर आता हूँ, ये भी visualization। रीजन की बेस पे करते हैं सर। ये देखें, मैंने रीजन की बेस पे बेसिकली रिलेशनशिप बनाया, तो यहाँ पे मेरे पास एक इसका आ गया कि ये रीजन की बेस पे लिंक हुआ हुआ है। बजटेड क्वांटिटी में यहाँ से ले आता हूँ, तो यहाँ पे ये लिंक जो बना हुआ है, मैं यहाँ से इसको बंद भी कर सकता हूँ, ऐसे खोल भी सकता हूँ। देखिए ऊपर ये ब्लू टिक भी आ गया, ऑरेंज टिक भी आ गया। ये मेरी सेकेंडरी डेटा सोर्स है, वो मेरी प्राइमरी डेटा सोर्स है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है डेटा ब्लेंडिंग का, जिसमें हम जो है बेसिकली मल्टीपल डेटा सोर्स से डेटा को टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, डेटा सोर्सेज को, और विजुअलाइज अपना कोई जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी विजुअलाइजेशन हमें बनानी है वो हम बना सकते हैं। हमें अगर की कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आके हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पे ये बन गया है, देखो अब ये दो पे बन गया, प्लस सेगमेंट पे ये दो पे ब्लेंडिंग हो गई है हमारी। ये बेसिकली डेटा ब्लेंडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है टैबलो के अंदर। इसके अलावा हमारे पास अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग के अंदर, मल्टी फैक्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम अपने मल्टीपल फैक्ट टेबल्स को अपने मॉडल का पार्ट बनाते हैं, और जो कि वर्क कर रहे होते हैं कॉमन शेयर डायमेंशन टेबल से। फॉर एग्जांपल एक सेल का टेबल है और एक बजट का टेबल है, और इन दोनों पे प्रोडक्ट आईडी आ रही है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट का भी तीसरा टेबल होगा, डायमेंशन टेबल, जिसको मैं दो फैक्ट टेबल से लिंक करूंगा। तो प्रोडक्ट वाइज मेरे पास सेल्स भी आ जाएगी और बजट भी आ जाएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल की इसका एक प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। अ, कैसे करते हैं? ये बेसिकली हमारे पास एक डेटा सेट था। इसके अंदर हमारे पास मल्टी फैक्ट टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्टिव हेड काउंट, इसको मैंने ड्रैग करा, ये मेरा फैक्ट टेबल है। इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन डाटा भी आ रहा है। सही है। इसके अलावा मेरे पास इसके अंदर ओपन पोजीशन का है एक टेबल, ये दूसरा फैक्ट टेबल है। और इसके अलावा मेरे पास है टर्मिनेशन का एक टेबल है, और एक डिपार्टमेंट का मेरे पास डायमेंशन टेबल है, जो कि मैं लिंक होगा इन तीनों से। डिपार्टमेंट आईडी की बेस पे ये बेसिकली जॉइंट एसोसिएशन बन गई, रिलेशनशिप बन गया इसका। और दूसरे फैक्ट टेबल से इस तरीके से इसको मैं लिंक कर दूंगा, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट आईडी वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। अब टर्मिनेशन से भी मैं इसको लिंक करूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी थी, तो इसने ऑटोमेटिकली इससे डिटेक्ट कर लिया। अब मैं फ्रंट एंड पे आके डिपार्टमेंट वाइज
फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस एक्टिव हेड काउंट से भी कुछ देख सकता हूँ, सुपरवाइजर का एक मेजर है मेरे पास में, यहाँ से ही देख सकता हूँ। तो ये देखिए ये बन गया। और इसी तरीके से ओपन पोजीशंस के अंदर से सुपरवाइजर आ रहा है, ये भी देख सकता हूँ, ये भी बन गया। टर्मिनेशन से भी सुपरवाइजर आ रहे हैं, ये भी बन गया। तो ये इसने बिल्कुल सही हमारा एसोसिएशन बनाई है। और एसोसिएशन वर्क बिल्कुल रन टाइम पे करती है, मतलब इमिडिएटली नहीं करती वर्क। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज एक्टिव हेड काउंट में से कुछ देख रहा हूँ, तो ये जो रिलेशनशिप है ये तभी काम करेगा जब मैं एक व्यू के अंदर बोथ टेबल से कुछ लेकर आऊँगा। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट मेरा यहाँ पे आया हुआ है, एक्टिव हेड काउंट के अंदर से मैं ये लेकर आया, तब जाके मेरा वो जो एसोसिएशन वाली की है वो काम करेगी रन टाइम पे, मतलब इमिडिएटली नहीं करती वो काम। तो ये एक फैक्ट टेबल, मल्टी फैक्ट टेबल का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हमें पता होना चाहिए बिल्कुल। इसके अंदर और टेबल्स हैं, कैंडिडेट्स का भी एक टेबल था। हम्म, और एक कैलेंडर का बेसिकली टेबल है। अब यहाँ पे डेट्स की बेस पे ज्वाइन करेंगे इसको। यहाँ पे इंटरव्यू डेट आ रही है। इस फैक्ट टेबल से मेरे पास हम्म, अब ये डेट की बेस पे मैंने ये तीनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी देख लूँ, ये एक मल्टी फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट है। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी डैशबोर्ड में हमारे फिल्टर होते हैं जो कि हर ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पे हम जब डेट का फिल्टर देंगे, वो हमारा इस वाले फैक्ट टेबल पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, टर्मिनेशन पे भी। इसी तरीके से डिपार्टमेंट का फिल्टर भी होगा वहाँ पे, तो वो इस पे भी काम करेगा। जिस जिससे लिंक बना हुआ है, जिस फैक्ट से लिंक बना हुआ है उससे काम करेगा। और एक इसमें प्रैक्टिस ये करनी चाहिए हमें कि हमारे पास जो मेजर्स होते हैं ना, वो हमें फैक्ट से लेकर आने चाहिए, और जितनी भी डायमेंशंस होती है ना, वो डायमेंशन या शेयर डायमेंशन टेबल से हमें लेकर आनी चाहिए। वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। और एक इसकी एक प्रैक्टिस होती है बेसिकली, वो भी मैं बताऊंगा। वो ये होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडिट कैलकुलेशन। ये एक बेसिकली रिलेशनशिप कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे हम कीज बनाते हैं। अब यहाँ पे कंपोजिट की भी बनती है, और प्राइमरी की, नॉर्मल सिंपल जो की होती है वो भी बनती है। तो अब कंपोजिट की बनाने के भी दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊँ, उसके अंदर डायमेंशन देख लूँ मैं क्या क्या आ रही है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी। अब हम यहाँ से इसको डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, प्लस का साइन लगा के भी कर सकते हैं, ये कॉन्कैटिनेट हो जाता है। ये तो खैर अभी इंटीजर है, तो ये इसको ऐड कर देगा। एक तरीका इसमें ये होता है करने का, कंपोजिट की बनाने का। और सेकंड तरीका होता है ऐड मोर फील्ड्स, यहाँ से जाके और फील्ड डाल दी यहाँ पे। यहाँ पे खैर आ नहीं रहा अभी। तो इस तरीके से हम कंपोजिट की बना लेते हैं यहाँ पे। और हमें जब रिलेशनशिप चेक करना होता है कि हमारा रिलेशनशिप सही बना है या नहीं बना, तो हम ये हमने जैसे कि यहाँ पे दो फील्ड डाली, की डाली। अब हम आगे आएंगे और दोनों टेबल में से सेम हम लोग फील्ड्स गिराएंगे। डेट, हाँ, अब ये देखेंगे डेट है, इसमें 2000 की सारी डेट्स आ रही हैं, लेकिन मैं जब कैलेंडर डेट लाऊंगा तो सिर्फ 2023 और 2024 जस्ट मैचिंग रिकॉर्ड ला रहा है वो।
जो कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है, हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर हमारी की सही नहीं बनती तो ये व्यू ही इनविजिबल हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा रिलेशनशिप में कोई इशू है, मसला है। ये बेसिकली एक वो होता है की चेक करने का तरीका, कि रिलेशनशिप चेक करने का तरीका कि हमारी की सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें होती हैं। और इसके अलावा रिलेशनशिप, ओके। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली अब थोड़ा सा इस इंटरफेस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या बेसिकली ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कनेक्शन टाइप होती है बेसिकली, एक्सट्रैक्ट और लाइव। ऑलराइट, लाइव कनेक्टिविटी ये होती है कि सिंपल डेटाबेस से कनेक्ट करा हुआ है हमने, और बस वो फ्रंट एंड पे चल रही हैं चीज़ें, और वो रन टाइम पे, मतलब कि आप कुछ भी विजुअलाइजेशन बनाएंगे तो वो रन टाइम पे क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा और उसका आउटपुट लेकर आएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ये स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी बनाई हुई है, अब हम कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोई, तो वो सर्विसेज स्लो भी हो सकती हैं हमारी, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर डाउन हुआ हुआ है कभी, तो कुछ हुआ हुआ है, वो लोडिंग पे ही, एग्जीक्यूशन पे ही अटका रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो इसकी प्रैक्टिस एक ये होती है कि हम इसका एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, विच इज़ स्टोर्ड इन डॉट हाइपर फाइल। हाइपर फाइल में इसकी बेसिकली जितनी भी रॉस होती हैं वो सारी स्टोर करता है, उस हाइपर फाइल को हम यूज़ करेंगे अपनी एनालिसिस बनाने के लिए, वो फास्ट होता है। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है। इसके अलावा इस तरफ हमारे पास बेसिकली डेटा सोर्स फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डेटा सोर्स फिल्टर भी लगा सकते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द डाटा, ताकि आगे लोड ना पड़े। फॉर एग्जांपल, मैं अगर देखूँ, कनेक्टिविटी पे है, कैंडिडेट नेम है। अभी देखें मेरे पास इतने सारे कैंडिडेट नेम आ रहे हैं, सही है। अब मुझे फ़िल्टर लगाना है, सिर्फ मुझे ये वाला कैंडिडेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेटा सोर्स लेवल पे आऊँगा, ऐड करूँगा यहाँ से कैंडिडेट नेम, दी सकता हूँ। ये आ गया, ये एक मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और इसको लगा दिया, ओके। इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ से। अब मैं जब आगे आऊँगा तो मुझे जस्ट एक कैंडिडेट दिखेगा। ये एक डेटा सोर्स फिल्टर होता है, और ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डाटा को, ताकि आगे लोड ना पड़े हमारे पास फ्रंट एंड पे, ज़्यादा रॉस ना है, जो हमें चाहिए भी नहीं वो भी हम लेकर ला रहे हैं, तो वो गलत है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव कर दिया, ओके। तो ये बेसिकली ये हो जाता है। अच्छा, के अलावा एक एग्जांपल हम वो वाली भी देख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली एक डुप्लीकेशन होती है रॉस की, जो कि मैनी टू मैनी रिलेशन पे होती है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ पहले मेरा डेटा सेट किस तरीके से है, क्या है। ये देखिए। अब मेरे पास ये बेसिकली कंज्यूमर का सेगमेंट है, जिसके आगे 20,000 रुपीज़ बजटेड क्वांटिटी है, सही है। अब
मैं आता हूँ टैबलो पे। यहाँ पे मेरा ऑर्डर्स का टेबल है और यहाँ पे मैं एक और ऐड करता हूँ एक्सेल फाइल, मेरी बजटेड क्वांटिटी वाली फाइल। सही है। ये मैंने बेसिकली सबसे पहले इसको हम ज्वाइन करेंगे। मेरा बेसिकली मकसद ये है ये एक्टिविटी करने का, मुझे टैबलो लेवल पे ये नंबर दिखाना है इस सेगमेंट के आगे, सेंट्रल रीजन के अंदर कंज्यूमर के सेगमेंट के आगे 20,000 रुपीज़ दिखने चाहिए। लेकिन मैं ऑर्डर्स में आ गया, मैंने ज्वाइन लगा के मैं दिखाऊंगा ये मेरी बजटेड क्वांटिटी, ये मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। यहाँ पे रीजन की बेस पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, मैं सेगमेंट की बेस पे भी लगा देता हूँ। इसको इनर कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है, मेरे पास वो नंबर आता है या नहीं। बजटेड क्वांटिटी, तो मेरे पास ये नंबर आप देखें, ये गलत आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है और वो कार्टेशियन बन रहा है इसमें। अब मैं बस डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ फिजिकल लेयर और लॉजिकल लेयर पे। तो यहाँ पे आके अब इसको सेम रिलेशनशिप बनाऊंगा एसोसिएशन से, सेम सेम की से। अब देखें मेरा नंबर ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो ये एक फ़र्क होता है एसोसिएशन में, रिलेशनशिप बनाने में और ज्वाइन लगाने में फिजिकल लेयर पर। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डेटा मॉडलिंग के हवाले से जो हमने कवर किए हैं। इसके अलावा और चीज़ें तो नहीं है, आई थिंक यही है बस सारी चीज़ें। तो वकार भाई, वी कैन कंक्लूड द सेशन नाउ। Thank you so much, Taha, for this amazing session. Participants, if you have any question, please go forward and ask them so we can address. अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने अभी कुछ इनपुट देना चाहूँगा कि बेसिकली ताहा ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, सो जब इनिशियली टैबलू स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर हमारे पास जॉइंट्स थे, बट जॉइंट्स डिड हैव देयर ओन लिमिटेशन। उस टाइम पर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था, रोडिफिकेशन होती थी, एग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स आती थी। So the Tableau come up with the idea of data blending late in I think 2018 तक जो है हमारे पास डेटा ब्लैंडिंग, 19 तक हम डेटा ब्लैंडिंग यूज कर रहे होते थे टू कैटर ऑल दोस प्रॉब्लम्स। Then in I think 2021 फिर Tableau again come up with advanced more versatile or evolution of data modeling in terms of by using data relationship, जो अभी तक का टैबलो का एडवांस एक फीचर है जिसके अंदर आपको फिजिकल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रन टाइम बेसिस पे सिर्फ नूडल्स की बेसिस पे जो ताहा ने आपको करके दिखाए थे, आप ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको लेफ्ट राइट और इनर आउटर टाइप की ज्वाइन, मतलब उसमें आपको ज्वाइन टाइप ही डिफाइन नहीं करनी पड़ती, यू जस्ट हैव टू हैव अ मैचिंग की, उसकी बेसिस पे आप ज्वाइन कर देते हैं और आपके फ्रंट एंड पर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। टैबलू रन टाइम बेसिस पे डिटेक्ट कर रहा होता है कि किस किस्म का ज्वाइन आपके लिए बेहतर होगा और उसकी एफिशिएंसी भी ज्वाइन से बेहतर होती है क्योंकि वो रन टाइम पे हो रहा है, आपका एक टेबल एक्सपैंड नहीं होता फिजिकली, तो हमारे पास एक डेटा वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता। जैसे वन बिग डेटा टेबल का एक कॉन्सेप्ट होता है ज्वाइंट्स के अंदर, वो भी यहाँ पर नहीं आता क्योंकि आपका डेटा दोनों अलग अलग, क्योंकि हम आपको पता है बीआई वर्ल्ड में नॉर्मलाइज डेटा पे काम कर रहे होते हैं, डेटा हमारा साइलोस में अलग अलग टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमें डेटा मॉडलिंग की नीड इसी आती है कि हमें किसी तरह से दो टेबल्स को आपस में मिलाना होता है, बातें करनी होती है, इसलिए किसी बेसिस पे एनालिसिस करना होता है, दो या तीन मल्टीपल, दो तीन तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम तो समझो टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स को आपस में मिला के मॉडल डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो
टैबलो की रिलेशनशिप वहाँ पे इसलिए एफिशिएंट हो जाता है कि आपके जो टेबल आपने कॉल भी कर ली है अपने डेटा मॉडल के अंदर, and again they are working independently until and unless you make visualization on the sheet level. तो जब शीट लेवल पे विजुअलाइजेशन बन जाती है तब वो आपस में लिंक होते हैं और वहां पर भी उस हद तक लिमिट लिंक होंगे जो आप फील्ड्स अपनी शीट के ऊपर कॉल करेंगे, अदरवाइज बाकी चीजें इंडिपेंडेंट रहती हैं, तो डेटा आपका एक्सपैंड नहीं होता अननेसेसरीली। सो इन अगेन अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द भी थॉट के इस तरह का सेशन होने चाहिए, अवेयरनेस बढ़ती है। There is a question, Abdullah, where does the performance comes in as a beginner in the data modeling does not seem to be an appropriate solution for complex dashboard file containing multiple worksheets. अच्छा देखिए, आपका जो सवाल है ना वो अब्दुल्ला वो नीड बेसिस पे होता है। समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, आपने अगर सीक्वल के अंदर सीटीई का पढ़ा हो कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जब एक टेबल के अंदर सर्टेन फील्ड्स ही नहीं है, तो हमें दूसरे टेबल की नीड होती है उसको बड़ा बनाने के लिए। देन उसके बाद हम ज्वाइंट्स उठाते हैं रिलेशनशिप के थ्रू फॉर यूजिंग डायमेंशंस, तो वहां पर ज्वाइंट्स मैंडेटरी हो जाते हैं कि आपको अपने एग्जिस्टिंग टेबल को बड़ा करना है, उसमें फर्दर फील्ड ऐड करनी है और उन फील्ड की बेसिस पे आप चाह रहे हैं कुछ और फर्दर डेटा रिफ्लेक्ट करना, राइट। तो वहां पर हम रिलेशनशिप दो जगह पे, मतलब एक जगह पे आपने इंटरनली एक इनर ज्वाइन या फिर लेफ्ट ज्वाइन लगा लिया, आपका एक फिजिकल एक टेबल कंप्लीट हो गया। पहले मिसाल है कि उसके अंदर 10 कॉलम आ रहे थे, ज्वाइन के बाद उसके अंदर 12 कॉलम हो गए, दो आपने उसके अंदर ऐड कर दिए, अब वो परमानेंट उस टेबल का पार्ट बन गए, राइट। उसके बाद आप फर्दर जो भी रिलेशनशिप बनाना चाहें वो लॉजिकल लेयर पे बनाएं, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर नाउ। उसके अंदर आप अब तो जो है काफी कॉम्प्लेक्स टाइप की टैबलो ने इनेबल कर दिए जब से ये मल्टी फैक्ट डेटा मॉडलिंग के फीचर इसने इंट्रोड्यूस करवाया। मल्टी फैक्ट क्या है? मल्टी फैक्ट ये होता है, पहले हमारे पास एक और लिमिटेशन थी इवन आफ्टर डेटा ब्लेंडिंग, कि हम जो है मल्टीपल जो, क्योंकि आप नॉर्मल जो एंटरप्राइज लेवल पे जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर आपकी जो फैक्ट टेबल्स होते हैं ना, जैसे सेल्स का टेबल है या आपके ऑर्डर्स का टेबल है, वो आपके फैक्ट टेबल्स होते हैं, वो हम मल्टीपल नहीं ला सकते थे अपने डेटा मॉडल के अंदर। बट मल्टी फैक्ट डेटा टेबल अलाउ मॉडलिंग अलाउ अस टू ब्रिंग मल्टीपल फैक्ट एंड ज्वाइन देम यूजिंग द शेयर डायमेंशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर्स लिया है, सेल्स लिया है, और उसके अगेंस्ट में मैं ऑर्डर प्रोडक्ट के नाम लाना चाह रहा हूँ, तो मेरे ये दोनों टेबल प्रोडक्ट के नाम से लिंक हो जाएंगे और टू ब्रिंग प्रोडक्ट नेम इनटू माय सेल्स एंड ऑर्डर टेबल, गेटिंग द पॉइंट। सो ये चीज होती है, और इसके अलावा आप उसको फर्दर डेट से भी कंबाइन कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा मतलब ओवरऑल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब तक आप इन चीज़ों में घुसेंगे नहीं, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट द आइडिया। लेकिन फॉर नाउ मैं जो है, आप इसके टच रहें, इंशाल्लाह हम इस पे और भी सेशन करने का इरादा रखता हूँ मैं। डेटा मॉडलिंग एज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, तो 1 घंटे में जितना हम कवर कर सकते थे हमने कोशिश की है। आई होप कि मैंने आपका आंसर कर दिया होगा। इफ एनीवन एल्स हैज क्वेश्चन तो प्लीज गो फॉरवर्ड। जहाँ तक और एक और बात कि पहले एक और लिमिटेशन थी कि हम मल्टीपल डेटा सोर्सेज, फॉर एग्जांपल मेरी एक डेटा सोर्स एग्जिस्ट करती है सीक्वल में, दूसरी एग्जिस्ट करती है सैप हाना में, तीसरी एग्जिस्ट करती है ओरेकल के अंदर। तो जब तक ज्वाइंट्स थे, हम आपस में अगर मैं मॉडल बनाऊंगा तो सिर्फ एक से बनेगा, मल्टीपल से नहीं बनता था। डेटा ब्लेंडिंग ने हमें इस चीज के लिए भी कैपेबल किया कि हम एक ही मॉडल के अंदर ऑरेकल से भी डेटा ला सकते हैं, सीक्वल से भी ला सकते हैं, एक्सेल फाइल से भी ला सकते हैं, हाइपर एक्सट्रैक्ट जो टैबलो की अपनी फाइल होती है उससे भी ला सकते हैं। रिलेशनशिप तो और एडवांस चला गया कि वो तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, आप साइड में मैनेज कर रहे होते हैं। तो दिस इज द केस। आपने जो सवाल पूछा था इसके अंदर फर्दर था कि कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट, तो मल्टीपल वर्कशीट्स के अलावा यू कैन हैव मल्टीपल कनेक्शन टाइप एज वेल। Exactly.
Anyone? As Shaisa, Profada, thanks for joining. शाइसा हमारे काफी रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। शाइसा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। All right, guys, thank you so much for joining. Okay, no problem, Shaisa. Anyone, if they want to ask a question through microphone, I can switch on their mic. Please let me know. All right, thank you so much, everyone, for taking out the time during Ramadan and for this session. I hope कि ये session सबके लिए थोड़ा useful रहा होगा. Obviously, topic time हमारे पास short था. We tried to cover as much as possible. Thank you, Taha, for this amazing session, taking out the time. I will, after this session, you will get the questionnaire and feedback form. Please do share your feedback about this session. We will try to conduct more session very frequently, inshallah, in the coming month. So thank you. Inshallah. Thanks once again. Thank you, Waqar bhai. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.